تبدیلیاں آئی ہیں. اے خدا میرا بلیو ہے کہ خدا تو آج کے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بلیس کرے گا یسوع کے نام میں. آمین. سب کہیں گے ہاللویا. سب تشریف رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. سب سے پہلے آپ سب کو خداوند یسوع عرض کرتا ہوں آپ کی سلامتی ہو. سو خداوند آپ کو بلیس کرے اور خداوند کی حضوری میں آپ کو مل کر اور خداوند کے اینجلز آپ کو خداوند کی پریزنس میں ویلکم کرتے ہیں. آمین. ایک بار اس کی پریزنس کے لیے زوردار تھینک یو جیسس. زوردار کیونکہ خداوند یہ جو آنے والا سال ہے یہ ہمارے لیے انقلاب کا سال ہونا چاہیے. آمین. اور جب آپ ایمان کے ساتھ حکم کریں گے, ایمان کے ساتھ بولیں گے کہ آنے والا سال جو ہے وہ بابرکت ہو, آنے والا سال جو ہے وہ میرا انوائنٹ ہو, مسا ہو, تو واقعی وہ سال مسا ہو جائے گا. آمین. اور شیطان کے سارے اسائنمنٹ, اس کی ساری قوتیں یسوع مسیح کے نام میں جو اس سال ٹربل دینے والی ہیں اس کے لہو سے باندھ دیتے ہیں. آمین. سب کہیں گے ہاللویا. لدبا سے ہاللویا. کیونکہ بہت سارے ایسے سال ہیں جو انسان کی زندگی سے گزر گئے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سال, یہ لمحات, یہ وقت نصیب نہیں ہوا. لیکن شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے, یہ قیمتی لمحات بخشے ہیں تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں اس سال کا آغاز کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جب وقت آئے گا, جب 12 بجیں گے تو بہت سارے لوگ سیلیبریٹ کریں گے اس سال کو دنیاوی چیزوں سے, نشوں سے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ اس سال کا آغاز کریں گے. لیکن مبارک ہے ہم جو خداوند کی حضوری میں سال کا آغاز کر رہے ہیں. ہاللویا. اور اس سال میں داخل ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں نصیحت کرے, ہمیں تربیت کرے, ہمیں یہ سکھائے کہ ہم نے اس سال کو کیسے گزارنا ہے. آمین. ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں. 2-3 حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا جو حوالہ ہے وائس کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھتا ہوں. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, سب نے دھیان سے سنا ہے. کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نہیں ہے؟ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نہیں ہے؟ وائس جو سلیمان نے اس کتاب کو لکھا ہے, اس کا مفسر ہے, اس کو لکھنے والا, وہ کہتا ہے کیا دنیا کے اندر, اس پورے جہان کے اندر کیا ایسی کوئی چیز ہے, کیا ایسی کوئی چیز آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جسے سلیمان کہتا ہے کہ اگر اسے دیکھا جائے تو کیا وہ کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کا مطلب سلیمان یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں, کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کیا ہے, نیو ہے, نہیں ہے. وہ ہر چیز کو یوں کہنا چاہتا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی چیز نیو نہیں تو پھر کیا ہے, پرانی ہے. یا تو پرانی یا تو نہیں, یا تو نہیں یا تو پرانی. اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھا جائے اور کہا جائے کہ یہ چیز کیا ہے. ہر ایک چیز کا مطلب پرانی ہے. آسمان بھی ہے, زمین, سورج, ستارے, زمین, درخت, ہر ایک چیز اس دنیا کے اندر ہے. لیکن سلیمان کہتا ہے کہ اگر ان چیزوں پر نگاہ کی جائے, اگر ان چیزوں پر دیکھا جائے, نظر کی جائے, غور کیا جائے, تو کہتا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز کیا ہے, نہیں. تو اس کا مطلب کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر نہیں. تو اگر انسان
नहीं जो आपको नया बना सकती है। आमीन। क्योंकि हिकमत से भरा हुआ शख्स दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है कि दुनिया के अंदर ऐसी भी एक चीज भी नहीं जिसको हम कह सकते कि ये चीज नहीं है। इसका मतलब सब की सब चीजें जो है वो पुरानी है। तो अगर इंसान को ये साल मिला है तो दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नया बना सकती है। कोई पैसा नहीं आपके दिल को नया कर सके। कोई ऐसी चीज है जो आपकी आंख को नया बना सके। कोई ऐसी चीज है जो आपकी रूह को नया कर सके। कोई ऐसी चीज है आपके मुस्तकबिल को नया कर सके। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको क्या बना सके, नया बना सके। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो देखी जाती है तो क्या कोई कह सकता है कि वो चीज क्या है? तो फिर नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी। तो हमने क्या करना है? ये साल नया साल है तो हमने अपने आप को क्या करना है? इब्राहिम, नया बनाना है। तो दुनिया के अंदर कुछ चीज है नया करने के लिए। इसका मतलब ये सोच निकाल देनी है, ये तस्वीर को लीड करना है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको नया कर सके। जब यीशु मसीह पैदा हुए, जब वो हैकल के अंदर आए, एक बुजुर्ग था जिसका नाम शमौन था। रोल उसने से वादा किया कि जब तक के वो खुदा के मसीह को ना देख ले हर इस मौत का मजा। और जब वक्त आया, यूसुफ और मरियम हैकल के अंदर आए और लिखा है कि शमौन बुजुर्ग रूल उसकी हदायत से उस हैकल के अंदर क्या गया? दाखिल हुआ। और जब उस बच्चे को शमौन के पास लाए और उसने कहा कि मेरी आंखों ने तेरी निजात को क्या कर लिया है? देख लिया है। इसका मतलब अगर आप सोचें कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जिसे कहा जाए कि ये क्या है, नहीं है, लेकिन जब शमौन बुजुर्ग के पास वो निजात आई है, असल में यही तो वो नई चीज है जिससे हम नए हो सकते हैं। आमीन। दुनिया के अंदर ऐसी भी कोई चीज नहीं जिसे क्या कहा जाए कि ये क्या है, लेकिन जो शमौन के पास आई है वो कहता है मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया, यही तो वो नई चीज है। हालेलुया। और ये आने वाला ये साल है, इस निजात के अंदर दाखिल हो के इस साल को नया बना सकते हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको कहा जाए कि ये क्या है, तो निजात पुरानी तो नहीं। निजात क्या है? मैं एक नया काम करूंगा। वो नया काम कौन सा है? अपने बेटे को दुनिया के अंदर भेजना, ये तो वो नया काम है। और शमौन कहता कि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया। अब एक और हवाला निकालते हैं, दूसरा ग्रंथी उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक बार सब पे के हालेलुया, लदबा से हालेलुया। दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है। और आगे कहता है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां खुदा के लिए। जोरदार। आमीन। इसमें कैसी खूबसूरत बात है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई है। अब वो कहता है कोई चीज नहीं, लेकिन पौलुस कहता है देखो वो चीजें क्या हो गई। सोचने वाली बात। सुलेमान कहता है दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं है, लेकिन वो कहता है देखो चीजें क्या हो गई। लेकिन कैसे हो गई? बीच में क्या है? जो मसीह में है वो नया मखलूक है। हालेलुया। इसका मतलब दुनिया के अंदर रह के हर एक चीज पुरानी है, और जो मसीह यीशु में चीजें आ जाती हो, पुरानी भी हो तो नई हो जाती है। हालेलुया। ये अपॉर्चुनिटी है हमारी। कोई चीज नहीं, और अगर कोई मसीह में आ जाए तो फिर वो नया नहीं रहता। हालेलुया। सुलेमान कहता कोई चीज नहीं,
लेकिन पौलुस कहता है देखो सब चीजें नहीं हो गई। कैसी बात है? लेकिन वो क्यों कहता है? क्या वो सहीफों को वो उसने स्टडी नहीं किया? क्या उसने पढ़ा नहीं था कि सुलेमान ने तो ये कहा कि दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं थी? वो क्यों कहता है कि देखो चीजें क्या हो गई? लेकिन मसीह में, हालेलुया, किसमें? मसीह में। जो कोई मसीह में वो क्या है? नया मखलूक। अगर ये साल नया है और अगर कोई शख्स अभी तक मसीह में पूरे तौर पर नहीं है, चर्च आना अच्छी बात है, रफाकत करना अच्छी बात है, खाना खाना, शॉपिंग करना सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी तक आप पूरे तौर पर अगर मसीह में नहीं आए तो आप नए मखलूक नहीं है। एक मिसाल थी, एक बुजुर्ग थे, मुझे याद आ गया, और वो कह रहे थे कि बैठे हुए थे कई जगह पर, बुजुर्ग थे और वो साधु थे और बड़े सच्चाई से खुदा की खिदमत करने वाले। कहते हैं क्या आपने कभी सांप को, किसको? सांप को सीधे चलते देखा है? क्या ख्याल है आपके? सांप को सीधे चलते कैसे चलता है? ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे चलते देखा है? उन्होंने सवाल किया, बताओ भाई कभी सांप को सीधे चलते देखा है? कुछ सेकंड गुजरे, वो कहते हैं बुजुर्गों सानू नहीं पता कि सांप कभी सीधा हो गया है, सांप नहीं पता, ये कोई नवी गाली सीखी कि सांप सीधा होता है। कहते नहीं मैं तो दसा में सांप सीधा होता है, तो कुछ टाइम देना। सैमसन जी वो बैठे थे बुजुर्ग चेयर पे, आप सोचना क्या, आप बताएं अपना ख्याल। बैठे रहे कहते हैं नहीं भाई जो हो नहीं सकता कि सांप कहीं सीधा टूट गया है। कुछ नाराज हो गए, कह रहे बुजुर्ग ने टाइम वेस्ट किया, ऐसे सवाल कर दिया हमसे, इनको खुद भी नहीं पता। और कुछ बुजुर्ग थे सब और चलो पर आप बाप ने बोला चलो छोटो पर दसना है नहीं, उन्होंने कहा भाई मैं तुम दसना। वो कहते हैं जब सांप सूंड के अंदर जाता है क्या हो जाता है? सीधा। वैसे सीधा चलता, लेकिन जब सूंड के अंदर जाएगा क्या हो जाएगा? जब वापिस आएगा फिर सीधा, फिर उसके बाद कहते हैं आज लोग चर्च जाते सीधे हो जाते सीधे हो जाएगा। पास्टर साहब ठीक है, मैं आ गया, सामने आ गया, नवी शर्ट पा गया, तैयारी से आया, दोस्त छाट गया, पार्टी जमा दे गया मैं। 2 घंटे के फिर दोस्त बैठे हैं, हाँ चर्च खत्म हो गया, पार्टी छूट गई, फिर जाके फिर हो जाओ। क्या किया? सांप को सीधा टूटा कि दो, तो फिर जब पाए जाता सैमसन में, वो यही कहना चाह रहे थे कि कुछ लोग चर्च में आते सीधे हो गए, लेकिन जब पाए जाएंगे फिर वो ये चाल, ये वो मखलूक नहीं है जो मसीह में नहीं है। जो नए हो जाते हैं ना दाएं देखते ना बाएं देखते, वो सीधा अपने निशान की तरफ बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि आपने नए साल के अंदर नए हो जाना है। आपकी आंखें नई, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी सोच, आपकी चाल, आपका बैठना उठना, हर एक चीज क्या हो जाए। लेकिन कब? जब आप इसमें आएंगे, मसीह में। इसका मतलब कि सब चीजें क्या है? पुरानी है। जो कि मसीह यीशु में वो नया मखलूक है, उसे नया क्या है, बाकी सब पुराने हैं। लेकिन ये पुराना मखलूक भी है, इसका मतलब नया भी है। तो कलाम के बाद आपने ये सोचना है कि क्या मैं अभी तक पुराना मखलूक हूं या नया हूं? पुराना मखलूक कौन है और नया मखलूक कौन है? जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया, उसे बाग के अंदर रखा, उस वक्त आदम के अंदर गुनाह नहीं था, और खुदा ने कहा तू इस बाग की बागबानी कर, बादशाही कर, लेकिन एक बात को याद रख, इस बाग के अंदर एक दरख्त है नेको बद का, उसमें से जिस रोज तू खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन क्या शैतान ने उसे बहकाया, उसकी वाइफ के जरिया से उस फल में से जो खाया तो लिखा उनके अंदर मौत क्या हो गई। जब खुदा ने उसे तख्लीक किया था उस वक्त उसके अंदर गुनाह नहीं था, और इसका मतलब ये था कि खुदा ने आदम को बिल्कुल नया बनाया था, बिल्कुल वो नया था। उसकी आंखें नहीं थी, उसकी सोच, उसकी अक्ल, उसकी
की जो हालत वो भी नहीं थी, उसके सोचने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, सब कुछ उसके अंदर एक पाकीज़गी थी, क्योंकि इसलिए कि उसके अंदर गुनाह नहीं था, उसके अंदर शरारत नहीं थी। इसका मतलब आदम क्या था? नया था। एडम वाज न्यू। जब खुदा ने उसे बनाया वो नया था, लेकिन शैतान को प्रॉब्लम हुई कि इसे क्या करे, गुनाह के सबब से पुराना कर दे। जब चीज पुरानी हो जाती है, मिटने को हम क्या करते हैं उस चीज को, फिर नई चीज लेकर, लेकिन खुदा चाहता नहीं था कि आदम को अपनी बाशे से फेंक दे। आमीन। अब आदम क्या हो गया है? पुराना। गुनाह के सबब से हर एक शख्स गुनाह के एतबार से वो क्या लगता था? पुराना पुराना पुराना। इसलिए कलाम खुदा के अंदर बहुत सारी ऐसे वाक़यात, बहुत सारी ऐसे पेशन गोइयां हैं जो ये बताती है कि एक ऐसा है जिसके वसीला वो आदम जो पुराना है वो नया हो सकता है। एक वाक़या आपके सामने शेयर करता हूं, नबी अलीशा का। बहुत सारे लोग थे, क्योंकि अलीशा एक नबी था और लोग ये जानते थे कि ये एलिया का शागिर्द है और बड़ा वफादार है। और आसमान में जाने के बाद चादर अलीशा के ऊपर आई थी और कुछ टाइम के बाद लोगों ने कहा कि देखो, अलीशा को कहते हैं कि ये शहर जिसे हम देखते हैं बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, लेकिन एक मसला है। एक क्या है? वो ये है कि जमीन बंजर है और पानी क्या है? खराब है। जमीन बंजर है, सैराब नहीं है, और पानी क्या है? खराब है। और जैसे हमारा खुदा खुद देखता है कि शहर तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पानी खराब है, जमीन बंजर है। जब अलीशा ने देखा तो अलीशा परेशान नहीं हुआ कि अब इसका हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो खुदा के साथ क्या था? कनेक्टेड था। अब खुदा ने उसे गाइड किया, तहरीक की कि ऐसा कर, इनको कह दे कि एक नया प्याला लाओ। हालेलुया। क्या लाओ? नया प्याला लाओ। और उस प्याले के अंदर उसने नमक डाल दिया, और जब उसने प्याले को उस पानी के अंदर उंडेला, उसने कहा खुदावन यूं फरमाता है कि आज के बाद ना ये पानी खराब होगा ना बंजरपन, और इसमें कभी मौत नहीं होगी। और लेकिन खुदावन के कलाम के मुताबिक ऐसा हुआ और आज तक वो ठीक है। हालेलुया। अब कहने का मतलब कि मौत का ताल्लुक किससे है? ये मौत का ताल्लुक बीमारियों का, कैंसर का, हर एक चीज का ताल्लुक गुनाह से है। और ये वो पुराना मखलूक है जिसने गुनाह के सबब से उस शैतान की बात को माना, और हर एक चीज पर पुराना, हर एक चीज पुरानी पे पुरानी होती गई। जरूर था कि उस पानी को ठीक करने के लिए, उस मौत को खत्म करने के नया प्याला लाया जाए। हालेलुया। आपके लिए नए प्यालों का बंदोबस्त किया खुदा ने। आमीन। पुराना प्याला, इसका मतलब खुदावन चाहता है कि मेरे लोग क्या हो जाए, इसलिए उसने कौन सा बंदोबस्त किया है? नए प्याले का। इसका मतलब वो नया प्याला वो जमीन पर नहीं है, वो नया प्याला आसमान से, उसने कहा मैं आसमान से आया हूं। यही वो प्याला है जिससे उंडेला गया, जिससे मारा गया, दफन किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया गया। और जब आप उस पर ईमान लाते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो आप नए हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या मौत रही? क्या बंजरपन उस पानी के अंदर रहा? अगर पिछले साल मौत के अंदर गुजरे हैं, पिछले साल अगर बंजरपन में गुजर चुके हैं, तो यह प्याला इसमें से पिए, यीशु को कबूल करें, आप नए हो जाएंगे। हालेलुया। आप क्या हो जाएंगे? नए हो जाएंगे। जो कोई मसीह यीशु में क्या है? नया मखलूक। यीशु मसीह शागिर्दों के साथ बैठे थे, रोटी ली और क्या लिया? प्याला भी लिया। ये वही है जिसे उंगीला गया, जिसे मारा गया, और इसका मतलब आप उस प्याले के अंदर शरीक हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पुराने हैं। हालेलुया। वो कहते देखो, वो लोगों का करैक्टर, रसूलों की बात कर रहा हूं, रसूलों के हाथ से निकले हुए श्वास की बात कर रहा हूं, कि नया मखलूक जब होता है उसकी कुछ तासीर भी होती है। नई चीज आंखों को दिखती है, पुरानी चीज
की आंखों को दिखती है। और जो मसीह में आ जाता है वो नया मखलूक नजर भी तो आए, सिर्फ कहने से हर चीज नहीं है, उसका असर, उसकी तासीर भी होनी चाहिए। स्टिफनेस के बारे में आप सोचे, देखें कुछ टाइम, क्या वो पुराना मखलूक था, वो नया मखलूक लगता है। ऐसी कोई मखलूक है जो पत्थर खाए और दुआ करे? पत्थर खाए क्या खुदा इनको माफ कर, ये गुनाह इनके सीने ना लगा, इसे कहते हैं नया मखलूक। जब पतरस उस नए मखलूक की स्पिरिट में दाखिल नहीं हुआ, कान को क्या कर दिया? तलवार में आंच लगा। तलवार को क्या कर, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया उस कान को? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह चाहता कि जो मुझ में है वो नया मखलूक नजर आए। उसने साबित किया, गाली के बदले गाली नहीं, तमाचे के बदले तमाचा नहीं, वो साबित करता है कि मैं आसमान से एक नई चीज हूं। हालेलुया। और आप अगर मसीह यीशु में आ चुके तो आपको क्या लगना चाहिए? आप नए मखलूक नजर आए। सिर्फ चर्च में नहीं, सिर्फ पास्टर के साथ, इवेंजलिस्ट के साथ रहने से नहीं, आप अकेले भी आपको नजर आए कि ये नया मखलूक है यीशु मसीह। ये डरते भी नया मखलूक है, उठते भी हर वक्त ये लगता है कि मसीह की आग से जल रहा है, इसे कहते हैं नया। कौन सा मखलूक बनना है, पुराना है नया? नया मखलूक। हाथ बड़े काट उठे नया, खुशी से दोनों हाथ लहराए। मेरे पीछे क्या खुदावन, ये साल जो आ रहा है, मैं पूरे तौर पर नया मखलूक बनना चाहता हूं। आमीन। इसका मतलब कि आपने ये साल कैसे बनना नया मखलूक, पुराना? यीशु मसीह ने कहा कोई भी नई मैन पुरानी मशकों में विधो मशकें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। इसका मतलब अगर नई मैन डालनी है तो मशकें कौन सी होनी चाहिए? तो रूल उसका जो मसा है, रूल उसका बपतिस्मा, वो एक नई मैन की मुशाबत है। तो मशकें कैसी होनी चाहिए? पुरानी है नहीं, मशकें पुरानी नहीं बल्कि नई होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने मैं आपके लिए रखी है। इधर पेंटिकोस के दिन में देखा सब लोग उसके जो ताजा मैं है, रूल उसका मसा। देखे ना, शराब में मत वाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो मशकें हैं, अपने जिस्म, अपने बदन जो हैं, इनको नया करना है ताकि रूह उसकी मैं आपके बदनों के अंदर जाए। हालेलुया। और ये साल प्रॉब्लम है, हर साल आती है, ट्रबल्स आएंगे, टफ है, लेकिन उनके लिए बेहतरीन जो खुदावन की प्रेजेंस में सीधा चलेंगे। कैसे चलेंगे? सही डायरेक्शन में। और जो गलत चलेगा उसके लिए ट्रबल ही ट्रबल है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी, जो सीधा चलेगा प्रेजेंस में, प्रेयर में, फास्टिंग में, कलाम सुनते, रीडिंग में, उसके लिए खुदावन आसमान के दरीचे भी खोले। हालेलुया। और आपको पता है एलिया के लिए क्यों फेवर जारी हुई? क्योंकि उसे जो कहा गया था मशरिक की तरफ क्या कर, रुख कर, उस डायरेक्शन में जा। लेकिन कब्बे रोटी और गोश्त क्या करते उसके लिए? अगर आप सोचें कुछ टाइम के लिए, अगर उस डायरेक्शन को फॉलो ना करता, क्या कब्बे आते? अगर आप चाहते हैं कि ये साल खुदावन आपको फेवर दे, आपने वो डायरेक्शन जो ये बताता है इसमें चलना है, खुदावन आपके लिए खुद का खुद फेवर जाएगा। आमीन। लेकिन ये साल आपने प्रेजेंस में, हजूरी में पढ़ना है। और मैं कलाम करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये साल आपके लिए आसमान के दरवाजे खुले। जो काम आपकी जिंदगी में नहीं हुए, यीशु मसीह के नाम में वो होना चाहिए। हालेलुया। खुदावन आपको इस कलाम को